Good morning, children. I am Sister Alta, Catholic Mission High School, Jhabua. Class 8, Subject English, Lesson number 13. Virtue pace. Virtue means गुण and pace गुण की पारक. गुण की पारक. Pace means पारक. Okay. Therefore, we'll learn. Before that lesson, we'll learn general 3 question. Okay. What do you know about the Mahabharata? What do you know about महाभारत? महाभारत के बारे में आप क्या जानते हैं? What do you know about the महाभारत? महाभारत के बारे में आप क्या जानते हैं? महाभारत is a ancient religion epic of the Hindus. Here war between Pandav and Kaurav was held in Kurukshetra, and where the Pandavas on the following paths of Duryodhan. समझ में आया? What do you understand this question? This question, what do you know about महाभारत? महाभारत के बारे में आप क्या जानते हैं? महाभारत is a ancient religion of Hindus, and here is written here Kurukshetra, where Pandav on the following path. Pandav followed the following path on the path of Duryodhan. Okay, understood the question? Why were the Pandavas given exile? Why were the Pandavas given exile? पांडव को क्या वनवास कैसे मिला? पांडव को वनवास कैसे मिला? Why were the Pandavas given exile? पांडव को वनवास कैसा मिला? आपने महाभारत पढ़ा होगा. तो Pandavas were given exile because Shakuni, the uncle of Duryodhan, defeated Yudhishthira, the eldest brother of Pandavas, unfairly in the game of dice. कि पांडव को वनवास इसलिए मिला क्योंकि शकुनी दुर्योधन के मामा के ज्येष्ठ और भातृ युधिष्ठिर कौन थे? बेईमानी, जो जुआ खेल में हार गया था. शकुनी मामा कौन था? पांडव को वनवास इसलिए मिला क्योंकि शकुनी मामा दुर्योधन के कौन थे? मामा थे. वे पांडव के ज्येष्ठ भातृ युधिष्ठिर को बेईमान से जुआ खेल में हरा दिया था. What difficulties did they face when they were in exile? What difficulties did they face when they were in exile? क्या पांडव had to face many
exile. Some problems arises due to their stay in forest. For example, the wild animals, irregular food supply, while others due to supernatural factors, and the facing demands and the taste of character conducted by Yushka by ultimate Pandavs overpower दिया लेकिन लिखे भी नहीं इधर। overpower मिस का मतलब शक्ति नियंत्रण, overpower का मतलब शक्ति नियंत्रण। ओके, समझ में आया? मिस हिंदी में बोलती है कि पांडव को अपने वनवास के समय बहुत सारी कठिनाइयां, चुनौतियां का सामना करना पड़ा। उनके वनवास करने के लिए कुछ कष्ट में जंगली जानवर के भी सामना करना पड़ा, और उनका जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि में बहुत डिफिकल्टी उनको सामना करना पड़ा। आइए हम अभी जनरल क्वेश्चन पढ़े हैं और हमारे लेसन में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 13, वर्चू पेस। वर्चू पेस का मतलब गुण का पारक, गुण का पारक। ओके, आइए हम लेसन पढ़ेंगे। चिल्ड्रन, ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एंड पे द अटेंशन, पॉइंट आउट योर फिंगर। Unless and until you point out your finger, then you will learn many things, spelling, and you will learn the lesson. Okay? So, open your textbooks and point out the fingers. Okay? Once, when the Pandavas were wandering in the forest, they felt very thirsty. thirsty का मतलब प्यासे, thirsty का मतलब प्यासे। But nowhere could they find water. They began to feel that they would die of thirst. देखो इसमें क्या समझ में आया? एक बार जब पांडव वन में भटक रहे थे, उनको क्या लगी? पानी की प्यास लगी। ऐसे लगेगी कि इनकी जान अभी जाएंगी बिना पानी से, ऐसी उनकी बहुत पानी की प्यास लगी थी। समझ में आया? ऐसा लगा था, प्यास लगी थी कि उनकी जान का मतलब इनका अभी से ही प्राण निकल जाएगा। ओके, The eldest brother Yudhishthira, a man of truth, then said to his half brother, half brother का मतलब भातृ, नकुल, O Nakul, son of Madhuri, climb that tree and look all over the forest and see if there is some water nearby. Look if there are trees, birds or plants, for there are sure sign of water. समझ में आया? माधुरी का पुत्र ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर, जो अत्यंत सत्यवादी थे, ने जब अपने अर्ध भातृ, हाफ ब्रदर का मतलब अर्ध भातृ नकुल से कहा, ओ नकुल के माधुरी के पुत्र, उस पेड़ पर चढ़कर वन के चारों तरफ देखो कि क्या कुछ जल कई निकट है। देखो यदि यह वृक्ष, पक्षी और पौधे हैं तो वह जहाँ जंगल होने का सटीक प्रमाण है। देखो ये जल सूत्र
क्या बोला कि जस्ट युधिष्ठिरा पेड़ के ऊपर माधुरी के पुत्र नकुल आप ऊपर चढ़ के देखो कि चारों तरफ में देखो कि जहाँ पर क्या है पानी दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे पक्षी दिखाई दे रही है, उसे देखो कि पानी दिख रहा है कि नहीं है। ओके, नकुल क्लाइंब द ट्री एंड सो सम प्लांट्स and greenery of a distance. It approached as if there was a pool. Go then, Nakul, said Yudhishthira, and bring some water for your brothers. समझ में आया? नकुल एक वृक्ष पर चढ़े और थोड़ी देर पर कुछ पौधे एवं हरियाली देखा। ऐसे प्रतीत होकर यह मानो कोई जलकुंड भी दिखा। युधिष्ठिर ने कहा, जाओ नकुल और भातृभाव के लिए कुछ जल लेके आओ। देखो नकुल वृक्ष पे चढ़ गया, उसको क्या दिखाया? पेड़ पौधे पर एक नलकुंड तलकुंड दिखा दिया। उधर युधिष्ठिर ने बोला, जाओ और उधर से जल लेके आओ। ओके, नकुल set out towards the place and came arose full of clean water. No sooner did he bend to drink the water than a strong voice cried, "Stop! Do not drink the water till you have obeyed the laws of this pool. No one can drink its water till he has answered the question. I ask, if you take even a drop of water before this, you may die at once." देखो नकुल उस स्थान में गया और स्वच्छ जल से स्वर पर पहुंचे। जैसे वह यह जल के हेतु झुके, वह बूंद आवाज की आई, ठहरिए ठहरिए। इसके जैसे नकुल तालाब के पास गया, उसको क्या दिखाई दी? स्वच्छ पानी दिखाई दी। और जैसे वो पानी का ड्रॉप लेने के लिए गया तो ये तालाब में से आवाज आया, रुकिए। इसके भी क्या है? रूल है, ये क्या है? रीति क्या है? उनके नियम है। उसका पानी आप टच नहीं, आप उसको नहीं स्पर्श कर सकते हैं। समझ में आया? नकुल पेड नो हीड। हीड का मतलब दिया मैंने इधर, इसने दिमाग नहीं चलाया। ओके, नकुल पेड नो हीड टू द वॉइस। He had hardly touched the water when he fell dead among the weeds growing near the pond. Weeds का मतलब रोना। Weeds का मतलब रोना। इसका मतलब है नकुल ने समय में आवाज को और कोई ध्यान नहीं दिया। पे नो हीड का मतलब ध्यान नहीं दिया। ओके, उन्होंने मुश्किल से जल को छुआ और क्या हो गया? सरोवर से निकट जंगली पौधे के बीच मृत्यु होकर गिर पड़ा। जैसे पोंड वो तालाब का पानी स्पर्श करा, वैसे ही तालाब के जो पेड़ पौधे होते उसी पर नकुल गिर के मर गया। ओके,
brother waited for hours for Nakul, but he did not return. Then Yudhishthira sent Sadev to find out his brother where about. देखो युधिष्ठिर ने क्या करा, उनके भातृगण कई घंटा हो चुका था और नहीं आया, तो युधिष्ठिर ने सदैव को भेजा कि नकुल कहाँ है। जब सदैव ने नकुल को देखा तो तालाब के पास वो मर चुका है। ओके, When Sadev reached the pool, he saw Nakul क्या करा, laying dead there, and he felt very much grieved. Grieve का मतलब दुखी। He could not weep. Weep का मतलब रोना। For his dead brother, as he is thirsty. thirsty का मतलब प्यासी। जो मरा चुका, जो पानी बिना पानी से उसका भाई मर चुका था, वो ओवरपावर का मतलब शक्ति नियंत्रण। इज इमोशन, he knelt down to drink water instead of. देखो, जब सदैव सरावर पहुंचा तो उन्होंने नकुल को क्या करा, मरा हुआ देखा, और वो मरा हुआ देखने से भाई, वो अपना भाई मरा चुका है, वो रो भी नहीं सका, वो घुटने टेक के उधर ही रह गया, रोने जैसा लगा। तो देखो इधर अभी, वेट, क्राई द वॉइस, डू नॉट टेक इवन वन ड्रॉप this water until you have answered my question. If you do not do so, you will die. देखो, सदैव भी गया और ठहरो तीव्र ध्वनि सुनाई दी, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुम इस जल को बूंद से पानी पी सकते हो तो तुम भी मर जाओगे। देखो, जब सदैव भी पानी पीने के लिए गया, और जैसे नील घुटने टेका और पानी का ड्रॉप लेने के लिए गया, तो वो पानी के तालाब में से आवाज सुनी, रुक, ठहरिए, अगर इस तालाब का पानी पी जाएंगे तो तुम भी मर जाएंगे। The prince did not care of the voice and stopped to drink water. He had hardly drink a little water when he also felt dead. When Sadev also failed to return, Yudhishthira sent Arjun and the beam bird both meet with the same fact. देखो, राजकुमार के ध्वनि का परवाह नहीं किया, राजकुमार के ध्वनि ने परवाह नहीं करा और पानी पीने के लिए गया, उधर तुरंत ही मर गया। Ultimately, Yudhishthira himself went to the pool. The stranger voice cried, "Stop! Unless you answer my question before drinking water, you will also die. Like your brother, such is the law of this place." क्या अंत में युधिष्ठिर स्वयं उस सराप तक गया, और जैसे बूंद पानी पीने के लिए गया तो क्या हो गया, उससे प्रश्न उसने
उससे आवाज निकल गया और प्रश्न पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूर्व यदि ये जल आप ग्रहण करते हुए अपने भातृ के प्रति तुम भी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर को बोला कि अगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो आप भी इधर ही, जैसे आपके भातृ भाई मर गए वैसे आप भी मर जाएंगे। ओके, यस यू आर राइट सेड द स्पिरिट, आई एम युष्का, द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, आई रूल ओवर दिस region. I have made a rule that anyone who wants to drink the water of this pool must first answer my question, and he shall die at once. देखो, और तुम यथार्थ मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं दिएगा तो तुम तुरंत मर जाओगे। ओके, आस्क योर क्वेश्चन। युधिष्ठिर ने बोला, आस्क योर क्वेश्चन, आई शैल आंसर देम टू द बेस्ट माई एबिलिटी। देन युष्का आस्क हिज क्वेश्चन। अपने प्रश्न पूछिए, आप प्रश्न पूछिए। युधिष्ठिर बोले, आप प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, युगानुसार बेहतर करूंगा। ओके, युष्का, विच इज द बेस्ट रोड टू हेवन, विच इज द बेस्ट रोड टू हेवन, स्वर्ग जाने का सर्वोत्तम पथ क्या है? युधिष्ठिर, वर्च्यू इज द बेस्ट रोड टू हेवन। युधिष्ठिर ने बोला कि धर्म ही स्वर्ग जाने का सर्वोत्तम पथ है। युधिष्ठिर, युष्का, विच इज द बेस्ट ऑफ वर्च्यू, सबसे अच्छा धर्म क्या है? ओके, युष्का, विच इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, ओके, मानव का सबसे बुरा अधम शत्रु कौन है? युधिष्ठिर ने बोला, एंगर इज द बेस्ट एनिमी, एंगर इज द बेस्ट एनिमी। युधिष्ठिर, क्रोध मानव का प्रबल शत्रु है। यश का, इस मैंने, ओके, युधिष्ठिर, द मैन who has much but given nothing. Okay, कौन सा मानव एवं समय ध्वनि का निर्धन दोनों है? ओके, युधिष्ठिर, द मैन who is much but gift nothing. युधिष्ठिर बोला कि वह मानव जिसके पास बहुत है पर कुछ देता नहीं हो। ओके, यश का, हाउ मेनी अ पुअर मैन बिकम रिच? युधिष्ठिर ने बोला कि, यशका ने बोला, यह निर्धन व्यक्ति धन्यवाद कैसे बन सकता है? ओके, यश का, युधिष्ठिर, अ पुअर मैन may become rich by being content. Okay, Yashka, what is the heaven, then the earth and the clouds? Okay, now we'll learn
Then said Yushka, "O prince, you have answered my question very well. Now you may drink the water. I also give you a boon. Name any one of your brother whom I may bring to life again." तब यशका ने, राजकुमार तुम मेरे प्रश्न के सारे आंसर दिए हैं, मैं वापस आपके भाइयों को जीवन दूंगा। ओके। युधिष्ठिर से, लेट मी नकुल द सन ऑफ माधुरी be brought to life, but he is only your half brother. And Yashka, did not you know your real brother Bhim and Arjun to live again? Do not you love them? क्या युधिष्ठिर ने बोला कि माद्री के पुत्र नकुल की पुनः जीवन दान दे। यशका ने बोला, परंतु वह तुम्हारे अर्धभातृ है, क्या तुम अपने यथा मातृगण भीम और अर्जुन को पुनः जीवित नहीं देखना चाहते हो? क्यों तुम उनमें से प्रेम नहीं करते? तो यस आई नो देम सेड युधिष्ठिर, बट आई विश दैट नकुल शुड कम बैक टू life. Why asked the Yashka? हाँ मैंने उनमें प्रेम करता हूँ, युधिष्ठिर बोले, परंतु मैं चाहता हूँ कि नकुल को भी पुनर्जीवन प्राप्त हो, क्योंकि यह यश के पुरुष है। युधिष्ठिर रिप्लाई, I am the son of Kunti and Nakul is the son of Madhuri. Please bring back Nakul's to life so that one son of each mother remain alive. कि युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि कुंती का पुत्र और नकुल माधुरी का पुत्र है, कृपया नकुल जीवन में वापस लौट दे दिए। Yudhishthira had hardly spoken these words when Yushka said, "O prince, I am Dharma, the god of justice. I wish to know if you were just. I find that you are really, so I am highly pleased and shall bring all your brothers to life." Yashka sprinkled some drop of water on the dead bodies of the four brothers and they came back to life. युधिष्ठिर ने यह शब्द कहा थे कि यशका ने बोला, ओ राजकुमार, धर्मराज और न्याय का देवता है, यह जानता है कि तुम सचमुच न्यायी व धर्मचारण और क्या है, तुम बिल्कुल सचमुच अच्छे हैं और तुम्हारी भाइयों और सब क्या है, पुनर्जीवित हो गए। इसमें हमारा लेसन खत्म हो गया। देखो हम लेसन में क्या सीखा, वर्चू पेश गुण, गुण की पारख। ओके, वर्ड्स मीनिंग थर्स्टी प्यास, जस्ट न्याय संगत, वीक रोना, ओवर पावर शक्ति से नियंत्रण, स्प्रिंकलर में छिड़काना, सिंबल, सिंबल का मतलब सांकेतिक, वंडर बिना उद्देश्य, वीड्स मीन जंगली पौधे, डिवाइन मीन दैवी, एंड गिवर, ग्रीव मीन्स दुखी होना, ग्रीव मीन्स दुखी होना। इन दिस लेसन हम क्या सीख रही है, 5 ब्रदर एंड दुर्योधन, 5 brothers
Where they were staying forest and one day they were feeling so thirsty, प्यासे थे। उस प्यास में उन्होंने सोचा कि हम ये प्यासे से हम मर जाएंगे, परंतु उनको ऐसी परीक्षा मिली कि युधिष्ठिर कौन था, उनका बड़ा भाई था। और युधिष्ठिर ने पहले किसको भेजा? नकुल। नकुल कौन था? माधुरी का बच्चा था। और वो कौन था? युधिष्ठिर का भातृभाई मीन्स हाफ ब्रदर था। और कुंती का बेटा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। नकुल एंड सहदेव कौन थे? हाँ, ये युधिष्ठिर के भाई, भातृभाई थे और माधुरी के बेटे थे। और पांच ही पांडव कहाँ गए थे? फॉरेस्ट में, जंगल में परीक्षा करने गए और इस परीक्षा में वो यशस्वी हुए। एट द एंड चारों भाई पौंड पे मर गए वो, लेकिन एक भाई युधिष्ठिर लास्ट में जाता है और क्या करता है? सारे जो यश का वो पौंड का जो था उसको सारे आपके प्रश्न का आंसर करता है, उत्तर देता है और यशस्वी होता है और बाकी चारों भाई को पुनः जीवन मिलता है। इसलिए बच्चे, इस हम घर पे हैं लॉकडाउन में, हम क्या करने का है? हम हमारे पढ़ाई के लिए भी ध्यान देने का है, बाहर के लिए भी ध्यान देने का है। जो हमको नॉलेज मिल रहा है उससे भी ग्रहण करने का है और अच्छे से पढ़ाई करने का है। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।